Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, NMIMS MBA 2023-25 बैच का एडमिशन डिटेल्स आर आउट। ठीक है, आज हम समझेंगे कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आउट हो चुकी है और क्या डेट्स है। ठीक है, और एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा वो फटाफट हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले द साइट विच यू हैव टू नो इज School of Business Management, which is called sbm.nmims.edu, जो आपके सामने यहाँ पे साइट दिख रही है। तो what you see here is that site. Okay, now I'm clicking on admissions. Yes or no? So if I click on admission, ठीक है, they are showing me so many courses. Okay, MBA, MBA HR, dual degree program, MBA Pharma, MBA Law, MBA Real Estate, MBA Healthcare, PhD, MBA part-time, MBA part-time in social entrepreneurship, diploma in social entrepreneurship, इस तरीके के उनके कोर्स है। Most of us may be interested in an MBA program. So when we are looking at an MBA program, ठीक है, so this is what the site is और यहाँ से आपको proper handout मिलेगा। Okay, so this is a very important handout to know. Okay, so I am going to discuss this handout to you, ठीक है, which is for admission 2023 for NMIMS School of Business Management. Okay, क्या क्या कोर्सेस एप्लीकेबल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टोटल आपके पास 9 कोर्सेस है और टोटल 9 कोर्सेस में से टोटल 1800 सीट्स अवेलेबल है। ओके, सो वन, द फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम विच गिव्स स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस फॉर स्पेशलाइजेशन, total 600 seats. Okay, now these are the names of the courses. ठीक है, and these are majorly in Mumbai. So MBA HR Mumbai 120 seat, MBA Business Analytics Mumbai 120 seats, MBA Digital Transformation Mumbai 60 seats, MBA Pharma Mumbai 120 seat. There is one campus in Bangalore which is MBA Bangalore 240 seat. Another campus is in Hyderabad, ठीक है, which is MBA 240 seats. Third campus is in Navi Mumbai, which is 180 seats, and the fourth campus is in Indore, which is 120 seats. So total मिला जुला कर 1800 seats are available. Is that very clear? सबको समझ आया? So दोस्तों, मुंबई में you have a program in MBA for specialization finance, marketing, operations and decision science. ठीक है, otherwise you can say few other specialization like MBA HR, MBA business analytics, MBA digital transformation, MBA pharma, they are separate courses. दोस्तों, ये separate course का मतलब you have to apply separately. ठीक है ना, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर आता है आपका नॉर्मल MBA which in a different campus which is in Bangalore, हैदराबाद, नवी मुंबई, इंदौर। क्लियर है? चलो, अच्छा, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन that 30% seats in the MBA program of NMIMS will be offered to female candidate. Female gender equality manage करने के लिए 30% seats are reserved for female, which is very important. नोट किया जाए। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये हो गया पहला पेज। नाउ सेकेंड, what are the steps to be followed? सबसे पहला is you have to register for NMAT examination. NMAT examination is conducted by GMAT. उसका पेइंग प्रोसेस अलग है, अभी 2 मिनट में बात करते हैं। उसके बाद आफ्टर यू रजिस्टर फॉर NMAT, you register at NMIMS. Visit nmims.edu, enter your NMAT registration number, complete your application process. Without registration number, you will not be able to complete NMIMS application form. Complete application process by paying registration fee. Registration fee is not refundable. Candidate have to register only once and the main application score will be used for the further selection process. Okay, so this is very important. So register with NMIMS before your scheduled date of the exam. ठीक है, तो ही आप अपना NMIMS में एप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब क्या? मतलब ये कि you have applied for NMIMS का एग्जाम कॉल NMAT and you took a date on 1st of October 2022. 1st October 2022 के पहले आपको NMIMS का फॉर्म भरना पड़ेगा। Is that very clear?
candidates are required to register for NMIMS before NMET examination. That means if NMET examination is scheduled on 9th October, then you must register on or before 8th of October. Is that very clear to everyone? ठीक है, is that very clear? Very good. Candidate has to give program preference in the NMIMS registration form. The final program preference will be taken after the shortlisting. Yes or no? Minimum 5 program preference has to be mentioned in the registration form, which means you can do it at a later stage as well, and you can actually apply for more number of, you can say, programs in one form itself. That is possible, and that is really possible, पर minimum 5 देने पड़ेंगे. After payment, a PDF of the application form is generated on the dashboard. If the candidate, it is the candidate's responsibility to check this PDF. Preference given by candidate in an online registration form is for informational only. Preference entered after shortlisting will be considered for the merit. दोस्तों, आपने पहले प्रेफरेंस दिया, वो प्रेफरेंस एक प्रोविजनल पर्पस के लिए है. जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, जब आप मेरिट लिस्ट बनेगा, जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, उस समय पे जो आप प्रेफरेंस दोगे वो फाइनल है. ठीक है. हाउएवर, अभी सही तरीके की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. बाद में आप दोगे गलत इंफॉर्मेशन तो अच्छी बात नहीं है. टू बी एलिजिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग, कैंडिडेट शुड हैव डन बोथ above mentioned step and appeared for the exam, which means NMET का अप्लाई किया, NMET के बाद NMIMS अप्लाई किया, NMIMS मतलब ये दोनों कर दिया. ओके, आपने अगर ये दोनों कर दिया, उसके बाद आपने NMET का एग्जाम अपीयर किया, डन. NMIMS का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, NMIMS का एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो रही है, NMET की बात नहीं हो रही है. NMIMS का एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल from 1st of August 2022. It is available till 31st October 2022 and 2600 rupees is charged. Okay, ठीक है, 2600 plus tax. NMIMS accept the score of first NMET. दोस्तों, NMET can be appeared 3 times. तीनों तीन के स्कोर नहीं काउंट होंगे NMIMS के लिए. It is only the first attempt will be counted. Is that very clear? सबको बात समझ में आई? ग्रेट. और सबके कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ठीक है, प्लीज उसको देख लीजिएगा. MBA जो नॉर्मल प्रोग्राम है और MBA HR है, उसमें मिनिमम 50% चाहिए. MBA बिजनेस एनालिटिक्स में यू नीड, यू कैन से, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 55% इन द एग्रीगेट दैट इज नीडेड. ओके, मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए. MBA डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप या तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, MCA होना चाहिए, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc फिजिक्स, BSc मैथ, और कोई भी ऐसी ग्रेजुएट डिग्री जहाँ पे मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं. फार्मा के लिए फार्मेसी रिलेटेड प्रोग्राम, लाइफ साइंसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक, MBBS, BDS, ऐसे कोर्सेज आपने लिए होने चाहिए. ये सर नो, ठीक है. तो ये आपके पास अलग अलग क्राइटेरिया है. ओके, चलिए बढ़िया. ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ आ गई क्राइटेरिया क्या है. ठीक है, और जो भी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपका लेकिन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? NMET का स्कोर कंपलसरी है. ओके, उसके बाद NMIMS, ठीक है, स्टेज 2 में आपको स्कोर के ऊपर शॉर्टलिस्ट करेगा. शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन NMET सेक्शनल एंड टोटल स्कोर विल बी डन. दोस्तों ये ध्यान रखना, शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन सेक्शनल एज वेल एज टोटल स्कोर, और उसके बाद कॉल लेटर विल बी डिक्लेयर्ड ऑन कैंडिडेट्स डैशबोर्ड. सेकंड स्टेज विल बी कंडक्टेड बाय NMIMS. देयर कुड बी साइकोमेट्रिक टेस्ट, देयर विल बी रिटन एनालिटिक टेस्ट, एंड देयर विल बी पर्सनल इंटरव्यू. इतनी चीजें होगी. दैट विल बी एन ऑफलाइन प्रोसेस, ऐसा भी इन्होंने लिखा है. As of now, it is mentioned as an offline process. ठीक है, we have to see whether the corona situation will allow it to be conducted in an offline manner or not. Okay, ये देखना जरूरी है. Okay, चलिए बढ़िया. Call letter will be available in the dashboard. No separate
you can say email or no separate you can say physical mail will be sent. दोस्तों final merit list will be prepared based on weightage given to academic performance, to work experiences. ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान होगा. फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डेटा कि भाई बच्चों ने एकेडमिक मार्क्स कितने ऑब्टेन करे, उनका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, उनका एनमेट में स्कोर कितना है. ठीक है, ओके. और जो सेकेंड स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, या साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू, उनमें मार्क्स कैसा है उसके बेसिस के ऊपर उनका सिलेक्शन होगा. सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ओनली. Decision regarding cutoff of the merit will be taken by NMIMS. Those candidates who have applied for more than one program, more than one campus in their application form, their selection will be based on merit score and preferences obtained by them as well as on the availability of the seats. Okay, so इसके बेसिस के ऊपर होगा. ओके दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट चाहिए. अगर डिग्री मार्कशीट अगर आप अपीयर कर रहे हो तो आपकी मार्कशीट जहाँ तक अवेलेबल है वो चाहिए. डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो देना है, ठीक है. नहीं हो तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए. नहीं हो तो दैट्स ओके. अगर आप पीजी दिखाना चाहते हो तो पीजी होना चाहिए. माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना, मेडिक्लेम पॉलिसी, ये सब चीज़ चाहिए. दैट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सेल्फ अटेस्टेड photocopies are to be uploaded. Original documents will be required for the verification purpose. Okay, so when you are, you can say, filling the form, ठीक है ना, तो आपको बहुत कम चीज़ें चाहिए. ये तो एडमिशन के टाइम पे चाहिए, फाइनल एडमिशन के टाइम पे. ओके, अभी कोई बात नहीं हो रही है. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. फीस कितनी इनके प्रोग्राम की दोस्तों? जो नॉर्मल MBA प्रोग्राम है इनका, है ना, दैट इज MBA as well as MBA HR has a fee structure of 11,95,000 rupees for 1 year. That's one academic year. ठीक है ना. ये लास्ट ईयर का था, जो 2023-24 का आएगा वो नया बताएंगे. ये सब एक साल की फीस का प्रोग्राम है. MBA फार्मा 7 लाख लास्ट ईयर का. MBA बैंगलोर, हैदराबाद, नवी मुंबई 9,02,000. इंदौर 7,50,000. MBA बिजनेस एनालिटिक्स इन मुंबई इज 9,02,000. MBA डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 8,52,000. ठीक है. और उसके बाद आपका अगर फी रिफंड पॉलिसी है तो ये आपकी रिफंड पॉलिसी है कि अगर जिस दिन लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगा उसके 15 दिन पहले अगर आप बोलेंगे तो 100% पैसा आपको वापस कर देंगे. ये सुनो, अगर आपने उसके 15 दिनों में पूछा तो आपको 90% दे देंगे. वो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है, उसके बाद 15 दिन हो गए तो 80% है. 30 डेज हो गए, मोर देन 15 एंड लेस देन 30 हो गया 50%, more than 30 हो गया, no money. This is what the entire idea is. Okay, is that very clear? So what is the important date for you? NMIMS application form starts on 1st of August. Last date is 31st October 2022. This is the information about NMIMS. Is that very clear? NMET is a separate process. So after understanding the NMIMS application process, now we are going to understand. So after understanding NMIMS application process, we are going to understand NMAT application process. ठीक है, you heard it right. NMAT बहुत अच्छी तरीके से ये लोग एग्जाम लेने वाले हैं. There are no negative marking, which is a very good news. ठीक है, स्पीड थोड़ी कम कर दी इन्होंने, so thereby it is very good. Equal weightage to all sections, that is also very good stuff. You can also play to your strength, which means you can choose the section order. पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा आप ले सकते हो ताकि आप अपने हिसाब से लड़ाई कर सकते हो. ठीक है, ये लोग आपको एक ऑफिशियल गाइड देंगे, स्टडी प्लान देंगे, है ना, कुछ मॉक टेस्ट भी देंगे. दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज यू विल गेट योर स्कोर इमीजिएटली, विच मीन्स यू विल सी योर स्कोर इमीजिएटली कि आपके मार्क्स कितने आए. ठीक है, that is what you can do. Within 48 hours you can download your scorecard. However, it doesn't mean कि आपको NMIMS में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी क्लैरिटी तब तक तो नहीं आएगी, पर आपको आपके परफॉर्मेंस का आउटपुट पक्का पता चलेगा. ठीक है, और आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे. दोस्तों, आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए
3 अटेम्प्ट देंगे। पर दोस्तों NMIMS हम देंगे क्यों, दैट इज NMAT एग्जाम देंगे क्यों, इट इज ओनली फॉर NMIMS। और NMIMS is going to take only the first attempt, it is not going to take the second attempt। हाँ, अगर आप NMIMS के अलावा और कोई कॉलेजेस जो NMAT का स्कोर लेती है वो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको और अटेम्प्ट देने चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सभी एग्जामिनेशन या तो कैट लेंगी या तो CMAT लेंगी। ये सुनो, विच मीन्स NMAT एक ही बार देना बनता है। बहुत ही सिंपल है। फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस आपको देता है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देता है, आपके पास जो टेस्ट सेंटर है करीबन 76 सिटीज में आपको टेस्ट सेंटर मिलेंगे, या आप अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या तो आप सेंटर पे जाइए या घर पे दीजिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडियली मेरा मानना है कि प्रॉक्टर टेस्ट घर पे देने की जगह पर आपको टेस्ट सेंटर पे देना चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत हुआ आपके टेस्ट के साथ तो आप वहाँ पे अपना इश्यू रेस कर सकते हो। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि आप टेस्ट देने गए थे और वहाँ पे कंप्यूटर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप उसके बारे में अपना ग्रीवांसेस कहीं पे किसी के सामने रख सकते हो। आप घर पे देते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हाउएवर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड यू गो टू द टेस्ट सेंटर। ओके, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, यू गेट लैंग्वेज 36 क्वेश्चंस 28 मिनट, क्वांटिटेटिव 36 क्वेश्चंस 52 मिनट्स, ठीक है, लॉजिकल 36 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स। दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग, यू कैन चूज योर ओन ऑर्डर। आपको सबसे पहले लैंग्वेज चालू करना है, फिर LR करना है, सबसे आखिरी में काउंट करना है, आप कर सकते हैं। 36 क्वेश्चंस है, 108 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 120 मिनट का टाइम होगा। और अगर आप लेकिन से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे देन योर स्कोर वुड बी 12। अगर आपके 36 के 36 राइट हो गए सो देन यू गेट 120। दिस इज हाउ द स्कोर विल वेरी। ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ द रेंज इज। Okay, this is the score range from 12 to 120, which means overall from 36 to 360 is the range. Okay, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन विल एंड बाय 10th of October. You can start scheduling the, you can say the date, that is रजिस्टर करने के बाद कब एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, उसका शेड्यूलिंग भी आप तब से ले सकते हो। आप शेड्यूलिंग बाद में करना चाहो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप रीशेड्यूलिंग करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। एग्जाम कौन सी तारीख से चालू होगा, एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 10th October टिल 19th of December। ठीक है, कब से चालू होगा, 10th of October से 19th of December। सर एग्जाम कब लेना चाहिए, क्या यू कैन से एग्जाम यू कैन से कैट के बाद लेना चाहिए या कैट के पहले लेना चाहिए। दोस्तों कैट और NMIMS का जो NMAT एग्जाम है वो दोनों में बड़ा अंतर है। हाउएवर अगर आपको कैट के पहले लेते हैं तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस इन योर कैट एग्जामिनेशन। सो आपने कैट के पहले एक ऐसी एग्जाम लिख चुकी है जो आपको पता है कि उस एग्जाम में आपने परफॉर्मेंस कैसे दी, तैयारी कैसे करी, वो आपको पता है, ठीक है ना। सो मेरा मानना है कि कैट के पहले ले लेना चाहिए, ठीक है, दैट्स अ बेस्ट वे, ठीक है। हाउएवर सम ऑफ यू मे ऑल्सो थिंक कि सर मैं कैट के बाद लेता हूँ, कैट के बाद इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कैट दे दूँ, NMIMS इज़ द मेन टारगेट फॉर मी, सो मैं कैट दे देता हूँ, मुझे पता चलेगा मेरी तैयारी कैसी हुई और उसके बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट करके मैं बाद में लेकिन से NMIMS का एग्ज़ाम NMAT लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप रीटेक भी ले सकते हो, पर अगर आप NMIMS ही टारगेट कर रहे हो, रीटेक का कोई पॉइंट नहीं है, एक ही बार एग्जाम देनी है और एक ही बार में आपका काम खत्म है। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन, सबको ये बात समझ में आई, ग्रेट। दोस्तों NMIMS का एग्जाम का फी स्ट्रक्चर क्या है, रजिस्ट्रेशन 2800 प्लस टैक्सेस, ठीक है, यू वांट टू टेक रीटेक once again 2800, you want to appear for one more time, you have to pay 2800. So if you are taking 3 retakes, so 3 into 2800, okay, that is very important, okay। अगर आप अपना एडिशनल स्कोर चाहिए विच मीन्स स्कोर का रिपोर्ट चाहिए, जनरली नहीं चाहिए होता है, देन यू हैव टू पे 300 रुपीज़। वैसे ज़रूरत नहीं है, दे आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट
दी जीमेट स्टाइल, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई स्कोर रिपोर्ट आपको चाहिए नहीं होगा, ठीक है ना. रीशेड्यूल करना है आपको, which means you took a particular date and now you have to reschedule it. Suddenly some things have changed in your life and you want to reschedule, then they are going to charge 1200 rupees for you. Okay, I hope it is very clear. And these are the test centers. These are the cities where the tests are available. In one city you may possibly get multiple centers. ठीक है, ये आप ध्यान रहे. ओके, सो आपके एरिया के मुताबिक नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल में यू गेट भिलाई, भोपाल, बिलासपुर, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, ग्वालियर, उज्जैन आपको मिलेगा. इन द वेस्टर्न साइड इन गुजरात यू आर गेटिंग सूरत, यू आर गेटिंग वडोदरा, यू आर गेटिंग अहमदाबाद, ठीक है, यू आर गेटिंग राजकोट, ठीक है. दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल. इन महाराष्ट्र यू गेट मुंबई, यू गेट नागपुर, नासिक, पुणे, ठीक है, कोल्हापुर. These are the options available. Aurangabad is also available. If you are in Rajasthan, then you are getting in you can say Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Ajmer. These are the cities available. ठीक है. And Goa में Panjim is available. And North में all the most of the cities are available. Or you can possibly take home-based proctor test. I hope it is very clear. ठीक है. In this video, I have given complete information about NMIMS as well as NMAT. ठीक है. अगर आपको ये दोनों चीज़ यू कैन से यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो अच्छी बात है. कोई चीज़ मिस हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि यू हैव अ क्वेरी, पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर आपको कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए NMIMS के लिए तो आप और बताइए. Will be helping you out with this. Okay, we are going to give you separate sessions for how to prepare for NMAT, what is important, what are the kind of you can say last year का कट ऑफ और उसकी तैयारी कैसे करते, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.